जय गुरु जी। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ चाहिए ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਵਿੱਚ। ये एक चीज है जो हर संगत कर सकती है एक टाइम पे, जब आएगा वो टाइम उनका आएगा। तो गुरु साहिब जी ने कड़ा प्रसाद की खुशबू ਚੂਜ਼ ਕਰੀ ਥੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ प्लानिंग सोच समझ के करते थे। लंगर प्रसाद इज द पूरा जो मोल है गुरु जी का, वो उसमें है। जब हम पहले जाते थे ना, तो गुरु जी ने इतना खिलाना। मेरी फर्स्ट मेमोरी गुरु साहिब जी इज हैविंग अमृत ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ। ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਐਂਡ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸੰਭਲ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪੇ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਭ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦਾਲ, ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਦ ਤੇ ਚਟਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੂ ਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਸੂ ਸੂ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਨੱਕ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਥਰੂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਫਕੋਰਸ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਡਾਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੇ ਰਿੰਪਲਸ ਬ੍ਰਦਰ ਸੈਟੀ ਐਂਡ ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਤੇ 11-12 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਸਾਗ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਸਦਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਚੁਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲੀਏ ਢੁਲੀਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਰ ਹੰਗਰੀ। ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਚਾय। ਲੰਗਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵੀ। ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਰਫੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, मूंग दाल हलवा मिला होया है, हलवा प्रसाद भी मिला होया है। अंगूरी जो होते हैं, वो जो मीठे अंगूरी नहीं होते हैं, कहते हैं रसबरी, वो भी मिले हुए हैं। सो मिठास में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी।
देखिए गुरु जी के टाइम पे ही वन ऑफ द आंटीज उनके फैमिली मेंबर बीमार थे, तो वो मेरे को कह रही थी, उस टाइम मैं सेवा में थी, किचन में मैं खड़ी होती थी, सैटी और बिपी और बिन्नी करते थे थाली की सेवा, सबको बांटने की। तो मेरे को आके जो आंटी कहती हैं कि मेरा सोन सो बीमार है, मैं इनको रोटी दे दो। मैं कहा मैं गुरु जी की इजाजत के बगैर आपको रोटी नहीं दे सकती। तो कहते हैं नो बैम्बी, आई रियली हैव टू टेक, समबडी इज नॉट वेल। तो कहते रुक जा, मैं फिर गुरु जी को पूछती हूँ। फिर गुरु जी को बोल के पास गई, गुरु जी ने कहा कि देख, ਉਹਨਾਂ ਦਾ वाकई बीमार है बंदा, तो तुसी दो प्रसादे उन्होंने देते हो। दो किस्म के बंदे आते हैं। गुरु जी खुद कहते थे कि लो जी लंगर लगने का टाइम है, डिनर वास्ते लोग आ गए हैं। डिनर, लंगर वास्ते नहीं, डिनर वास्ते ਇਹ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। तो कई संगत इस तरह की भी होती है जो अपने फैमिली वास्ते डिनर वास्ते ले जाती है समान। पर जब तुसी सिर्फ दो प्रसादे दे रहे हो, सब्जी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो और डिनर नहीं बनता, फिर बंदा अगले सोच के कहेगा ना दो प्रसादे ही मिलने, वो लेके जावा कि डिनर तो मिलना नहीं मेरी फैमिली वास्ते। इसी हर एक बंदे की श्रद्धा थोड़ी होती है, लंगर है उसको श्रद्धा से खाना होता है, क्योंकि वो गुरु जी का प्यार है, उसने आपको ठीक करना है। और वैसे भी गुरु जी ने बोला है जो इधर खाएगा वो दवाई, जो बाहर खाएगा वो मिठाई। पर अगर बंदा बीमार है वो अलग बात है। फिर दो प्रसादे गुरुजी ने खुद मुंह से बोले हुए हैं मेरे को, तो मैंने दो प्रसादे फिर जो आंटी को दिए थे। आपका जो श्रद्धा भाव है वही लंगर आपको वापस देगा। जो आप 50% श्रद्धा भाव करोगे वो 50% करेगा, जो आप कान आंखें बंद करके खाओगे तो उसने भी उसका रिएक्शन साथ में देना है। गुरु जी कहते सी ना, जिन्नी जिन्नी तुसी मैंने श्रद्धा भाव दोगे उन्हें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दूंगा। इट्स नॉट लाइक गुरु जी ने सबका 90% ले लिया, वो है ही नहीं। वो चीज है ही नहीं। 99% 90% जो भी संगत की थी वो है ही नहीं। वो है कि अच्छा, आपने इतनी श्रद्धा भाव डाली है गुरु जी की तरफ, वो उतने आपके कर्म सवारे उनके। ये नहीं है कि गुरु जी बैठे हैं वो आपके सारे कर्म सवार देंगे, वो चीज नहीं है। गुरु जी कहते सी सत्संग जो होता है शॉर्ट विच होना चाहिए। जिस तरह आजकल लोग लंबा 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 करते ਉਹ नहीं, सत्संग शॉर्ट होना चाहिए। एक बंदे ਨੂੰ खड़ा करो, 20 मिनट उन्होंने कहो जो करना है, उसके बाद लंगर प्रसाद सर्व करो। क्योंकि अगेन इन एम्पायर स्टेट गुरु जी ने एक दफा लंगर प्रसाद सर्व करवा के, और एक ही दफा ये हुआ है, लंगर प्रसाद सर्व करवा के सारों को बोल दिया खाना नहीं। फिर एक अंकल को खड़ा कर दिया और बोला अपना सत्संग सुनाओ। ठीक है, जो भी वो बोल रहा था, वैसे ही लंगर प्रसाद लेट सर्व हुआ था, मेरे को भूख लगी हुई थी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना जो अंकल ने कहा। मेरा ध्यान था कि हाँ लंगर प्रसाद ये है, वेरी नाइस। वो कब बोलना बंद करेगा तो मैं लंगर खाऊं। ठीक है। बहुत बाद में फिर गुरु जी ने समझाया कि मन एक ही तरफ चलता है। अगर आप लंगर प्रसाद खा रहे हो तो आप सत्संग की बेद भी कर रहे हो, अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो आप लंगर प्रसाद की बेद भी कर रहे हो। आजकल तो लोग मंत्र जाप सुनते हैं और साथ में चाय प्रसाद वगैरह देना शुरू कर देते हैं। देखो, जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपको वो गुरु जी ने मंत्र जो दिया है वो कर रहे हो एक किस्म का, तो उस टाइम पे आप में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप कुछ भी ना और करो, हिलो भी नहीं डुलो भी नहीं, अपना ध्यान गुरु साहब में करो। तो कई जगह मैंने देखा है कि मंत्र जाप के टाइम चाय प्रसाद और जो भी खाने के लिए है वो बांटा जा रहा है और अगले बंदे खा भी रहे हैं। देखो, हमारा ओपिनियन तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो हकीकत में, क्योंकि गुरु जी कहते थे आई एम अ प्रैक्टिकल गुरु। गुरु जी ने प्रैक्टिकली क्या किया है? जब हम जाते थे हम बैठते थे, जब गुरु जी चाहते थे तब चाय प्रसाद आती थी, मतलब आराम से। ये नहीं कि हम बैठे हैं तो चाय प्रसाद जल प्रसाद हमें बंदा सिर पे खड़ा हुआ है ले लो जी, वो नहीं, आराम से होता था। और चाय प्रसाद का ग्लास हम खुद ट्रे से उठाते थे और हमें पास करना अलाउड नहीं था। मैंने एक दफा पास करने की कोशिश करी थी, कहते वापस रख, कहना अपनी ब्लेसिंग खुद उठाओ। तो अपना चाय प्रसाद का ग्लास आप खुद उठा के फिर अपने पास रखो। और वैसे भी हम लोगों को कुछ खाने को तो नहीं मिलता था, हमें सिर्फ चाय प्रसाद मिलती थी उस टाइम पे। उसके बाद लंगर, जब हम जाते थे किसी के घर, जब गुरुजी हमें लेके जाते थे किसी संगत के घर, तो फिर चाय प्रसाद के साथ दो चीजें खाने को साथ मिल जाती थी, कभी कभी, हमेशा नहीं। सो चाय प्रसाद इज समथिंग शुड बी सर्व्ड आराम दे नाल, कोई हरी नहीं है। जिस दी किस्मत में जो है वो तो मिलना ही मिलना है, पर आराम नाल करो। इट इज गुरु जी सिस्टम, एंड ऑफ द डे ਇਹ सिस्टम गुरु जी ने रखा होया है, तो उसके हिसाब नाल चलो ना, क्यों एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो? ये तो होमे हो गई ना जो आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हो कि मैं चाहती हूँ मैं कर रही हूँ। किसी ने भी मेरे को पूछा था कॉफी की जगह हम लस्सी कर सकते हैं क्योंकि आजकल गर्मी है। मैंने कहा जरूर, आप लंगर के साथ करिए। कहते नहीं, चाय प्रसाद की जगह। मैंने कहा चाय प्रसाद की जगह कुछ और नहीं हो सकता। कई संगत है ना वो करती है सिर्फ टी टाइम पे सत्संग, तो वो तो अलग हिसाब हो गया। एक तो गुरु साहिब जी को गंद बिल्कुल नहीं पसंद, तो जो भी जैसे हमने अगर चाय प्रसाद पी लिया, हमने ग्लास अपने सामने रख लिया, जब सेवादार आता है
वो उठाता है। ये नहीं होता कि साथ साथ एकदम से उठा लिया। जब वो आया, उसने देखा कि 5-10 लोगों ने पी लिया, वो 5-10 लोगों के अपने आप उठा के चले जाता था। और अगर कोई ध्यान में होता था तो हम उनका ग्लास उठा के उनको दे देते थे सेवादार को। पर क्योंकि गुरुजी को गंद नहीं पसंद है बिल्कुल, तो साथ साथ उठाना पड़ता है। ये चीज करनी पड़ती है। अगर संगत खुद उठ के देना शुरू कर देगी ना सब कुछ, तो फिर वो ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी। पर एंड ऑफ द डे, जो गुरु साहिब जी ने सिस्टम रखा है वो था कि हम चाय और प्रसाद पी के, हमारा ग्लास हमारे सामने होता था, और फिर जब सेवादार आता था वो अपने आप अपने हिसाब से उठा ले जाते थे। जब काफी सारे इकट्ठे हो जाते थे ना, अपने आप उठा लेते। कई दफा इस तरह भी होता था कि गुरुजी कहते इथे आ उठा, मतलब ज्यादा ग्लास दिख गए ना गुरुजी को, उन्होंने कहा इस तरह बुलाना, क्या उठा, गंद नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड दैट गुरुजी ऑलवेज वांटेड 4 to a थाली, नॉट 1 person ईच। जब आप गुरु साहिब जी का मेन रूल तोड़ रहे हो, तो फिर ये बात ठीक नहीं है ना। उन्होंने कहा था 4 बंदे बैठेंगे एक थाली पे, उसका मतलब 4 संगत बैठेंगे इकट्ठे। एक सिंगल थाली जो देते थे, वो देते थे जब फंक्शन होता था, तब बुफे लगता था, तब आपकी सिंगल थाली होती थी। या गुरुजी ने डिसाइड, एक दो दफा हुआ था, गुरुजी कहते हैं अच्छा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वंड दो फटाफट, तो प्लेट्स में डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के सबको एक एक प्लेट वंड देते थे, ठीक है। पर मेन 99.9% क्या होता था, 4 to a थाली। दैट इज गुरुजी सिस्टम। आजकल चलो कोविड की वजह से लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है, कोविड खत्म हो गया, अब वापस सिस्टम में जाओ। अब वापस सिस्टम में लोग की जाना नहीं मांगते, क्योंकि छुआछूत होती है कि उसने छुआ, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को ये नहीं पसंद, मेरे को वो नहीं पसंद। पर सिस्टम तो सिस्टम है। जो गुरुजी ने सिखाया आज आप रोक रहे हो, कल आपके ही बच्चे मंदिर जाएंगे और वो ही गलत सिस्टम में बैठेंगे। सो सिस्टम इज 4 to a थाली। मैं हाथ जोड़ के सबको कहती हूँ, 4 to a थाली, घर में भी 4 to a थाली, इट इज नॉट सिंगल। क्योंकि उसमें सिर्फ आप लंगर नहीं खा रहे हो, आपका जो काट हो रहा है अगले के साथ। क्योंकि मेरे को भी नहीं पसंद था, मेरे को पहली दफा तो किसी ट्रक ड्राइवर के साथ गुरुजी ने बिठाया था, मेरे को तो कुछ हो रहा था खाते हुए, मतलब मेरे में भी बहुत छुआछूत थी। पहले तो हम कोशिश करते थे हम चारों इकट्ठे बैठे, ठीक है, फैमिली मेंबर्स। गुरुजी ने तोड़वा दिया, तू उठे बे, तू उठे बे, तू उठे बे, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट लंगर, इट इज ऑल्सो लेन देन, कर्म काट रहे हैं, कर्ज काट रहे हैं। जो भी तुम्हारा कर्ज है, कहीं और शायद कभी ना मिले, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है वो कट रहा है, बैलेंस आउट हो रहा है। तो हर चीज के पीछे, गुरु जी की हर चीज के पीछे बहुत डीप मीनिंग है, एंड हम सिर्फ सरफेस देखते हैं। आई नो ऑफ प्लेसेस वे दे हैव अ किटी फॉर सत्संग, मतलब जिसकी किटी निकलती है वो उस महीने सत्संग करता है। मैं कहती हूँ चलो इसी बहाने गुरु जी को हम याद कर लेते, पर मर्यादा रखिए। मर्यादा रखनी जरूरी है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था आगे जाके अन्न पानी सब कुछ कम हो जाना है, ठीक है। वो चीजें गुरु जी की करो जो गुरु जी ने आगे बहुत सोच समझ के हमसे तब करवाई है। जब उन्होंने कहा था फूल ज्यादा डेकोरेट नहीं करने, क्योंकि फूल खत्म हो जाने ने, फूल बहुत कम हो जाने ने, लोगों को लकड़ी जलान वास्ते नहीं मिलनी, ठीक है, पेड़ लगाओ। सारा जो मीट है, चिकन वगैरह, इनमें बीमारियां हो जानी है, नॉनवेज बंद करना है। फिर उन्होंने क्या सीखे, अपना गेट टू नो योर क्रॉप्स, मतलब धनिया कौन सा है, पुदीना कौन सा है, कहाँ से कैसे आता है। इलायची ही सोच लो, मेरे को नहीं पता थी, मैंने टू गूगल इलायची कहाँ से आती है, ठीक है, दो आई लिव्ड इन कोचीन बट स्टिल आई डिडंट नो। सो टू एजुकेट योर सेल्फ, सो दैट टुमारो यू सी अ प्लांट एंड यू से ओके मैनू कुछ याद है कि ये चीज खा सकते हो, ये चीज नहीं खा सकते हो। ए टाइम कद आएगा वो मैनू नहीं पता, बट प्रिपरेशन तो गुरुजी ने हमें अभी से करवानी शुरू कर दी थी ना, पहले से ही करवानी शुरू कर दी थी। माड़ा वक्त दुनिया में देखो, माड़ा वक्त आई मीन होलसेल ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। एंड देन जो ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, घर घूर ए वो तो सारा गया। फिर उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर वर्क, गेट ऑफ योर चेयर्स। जैसे आप इतनी सेवा कर रहे हो, आप अपनी मदद लोग के लिए चाय बना रहे हो, उठ रहे हो, ये चीजें कर, ये सब चीजें जरूरी है, हाथ पैर यूज करनी जरूरी है, ताकि हम फिजिकली भी फिट रहें। गुरु जी इज अ प्रैक्टिकल गुरु। उन्होंने जो जो सिस्टम्स पहले रखे हैं वही हमें रखने चाहिए, वही हमें करने चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही हमें और हमारे आगे की पुश्तों के काम आएंगे। योर डिवोशन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, कि हाँ इस बंदे ने जो भी हालात है, उसने मेरे को फिर भी याद किया, मेरे नियमाना चलिया। संगत जी, लंगर प्रसाद इज द एसेंस ऑफ गुरु जी। गुरु जी का तोड़ है, सब कुछ है उस विच। ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं कि ਤੁਸੀਂ सोच भी नहीं सकते। तो इसनों बड़े प्यार नाल खाओ, बड़ी श्रद्धा नाल खाओ। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਤ ਕਰੋ, ਜਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ ਲੰਗਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ। मेहर हो आप गुरु साहिब जी की आप सब पे। जय गुरु जी।